Let's start it. So, guys, today I'm starting Hibernate day 18 because in last class we haven't discussed anything related to our topic. So, here today we are starting again with the Hibernate day 18. There are a few important things which we were talking about. That one is at the rate basic annotation. Second one is at the rate embedded, and at the rate embeddable. These are the very important annotation. Yes, sometimes in few of the very initial cases you may get the requirement of all these or you may not, but yes, from interview prospect it is important. It is important from the इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. इंटरव्यू के पर्पज से आपको ये इंपॉर्टेंट है. और एक बात और आप समझ लीजिए, हाइबरनेट जब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं या जो आपको टाइम ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ मेनली फॉर द इंटरव्यू, फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज आई एम टेकिंग दिस क्लासेस. कीप इट इन माइंड ऑलवेज. और अगर ये चीजें हम लोग नहीं करते तो ऑलरेडी स्प्रिंग बूट पढ़ा के अब तक मैं खत्म करने के पोजीशन में भी होता. तो आप इस चीज को ध्यान आप भूल जाते हैं बार बार. ठीक है, इनिशियली तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, एंड देन थिंग्स जब चीजें वो हो जाती हैं आपको पढ़ लेते हैं बाकी चीज, तो आप ऐसा फील कराते हैं कि नहीं नहीं क्यों पढ़ाए, आप वही कर देते. सो दैट इज व्हाट यू गाइज मेक्स अस फील. ठीक है ना. तो चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था अभी किस चीज की. मैं आपसे बात कर रहा था एनोटेशंस का, विच इज एट द रेट बेसिक एनोटेशन, एम्बेडेड, एम्बेडेबल, एंड ऐसे और भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हो सकती हैं. नाउ से फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान दीजिए यहां से. आपने आई थिंक इम्यूटेबल वाला हम लोग देख चुके हैं ना. ठीक है, वी हैव सीन दिस फॉर द इम्यूटेबल वन. अब यहां से एक क्वेश्चन है आपके लिए. What if we do not write, what if we do not write here at the rate column annotation? अगर हम लोग यहां पे at the rate column annotation न लिखें, if in case we are not writing at the rate column annotation, so what will happen? Or is it mandatory to write at the rate column annotation? Is it mandatory to write at the rate column annotation? Very good. See, understand it first. Whenever you are not writing at the rate column annotation, so first of all, it is not mandatory to write at the rate column annotation. आपको यहाँ पे ये at the rate column annotation लिखना mandatory नहीं है. It is not at all mandatory to write this particular annotation. So if you are not writing at the rate column annotation, what will happen? At the rate column annotation, if you are not writing, what will happen? जो यहां पे फील्ड नेम है, ये जो फील्ड नेम है, सेम नेम के साथ आपका कॉलम बन जाएगा. इट विल क्रिएट विद द सेम नेम. बट इन केस इफ यू वांटेड टू चेंज, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इफ यू वांटेड टू चेंज, व्हाट यू वांट टू चेंज?
name of this column, like you wanted to create with some other name, right? in database के अंदर में डेटाबेस के अंदर में कॉलम नेम कुछ अलग आप बनाना चाहते हो, सो यू आर गिविंग दिस @ colon annotation, and other than that @colon annotation is providing lot of other options also, right? But we have another option. When you have another option, you have another option called as @basic. When you are applying here @basic, so it is going to create column with the name of CNAME itself, means whatever will be the property name, with that name only it is going to create the data into the database, right? So it is similar to the @column, but @column is providing a lot of other facilities to perform, whereas basic is not going to perform much more other, it is not providing other facilities, you can say, or other options. So here, if you are writing @basic, then your name of the field will be the same only, you will not be able to change it. Is that clear everyone? ये मेरी बात आपको क्लियर हुई? Rarely we will be using @basic. समझ में आया आपको? Will be using rarely @basic. हम लोग @basic को बहुत ही कम यूज करेंगे. अब हम लोग एक और बात करते हैं यहां पे, और अच्छा क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन, लेट मी आस्क द क्वेश्चन विथ यू एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट कि क्या है और कैसे है. से फॉर एग्जाम्पल, when you are talking about ORM tool, so ORM tool में you have the different annotations जिसके थ्रू आप फील्ड्स पे अप्लाई करके उसमें हम प्राइमरी की का टैग लगा सकते हैं, हम फॉरेन के रेफरेंसेस बना सक रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं. बट देयर आर मेनी अदर कॉन्स्टेंट्स फॉर द डेटाबेस, ठीक है, विच वी वांटेड टू अप्लाई ऑन द डेटाबेस. हम डेटाबेस के ऊपर ऐसे और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो हम अप्लाई करना चाहते हैं. किस पे अप्लाई करना चाहते हैं भाई? हम लोग डेटाबेस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं. लॉट ऑफ अदर कंस्ट्रेंट्स विच वी वांटेड टू अप्लाई ओवर द डेटाबेस. क्लियर है क्या? हम लोग ऐसे बहुत सारे, अच्छा, उसको हम अपने हाइबरनेट के ही थ्रू मैनेज करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नॉट नल कांस्टेंट, हम यूनिक की कांस्टेंट मैनेज लिखना चाहते हैं, ठीक है. सो इन दैट वे देयर कुड बी many different fields which we wanted to control कि इसका काम ऐसे चले. अब आप ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान से समझिएगा यहां पे. सो वी हैव दीज ऑप्शंस, ये आप समझिएगा, अच्छा चीज है ये, जिससे कि आपको समझ में आएगा. ये क्लियर है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नेम लिखा, सो व्हाट नेम यू आर राइटिंग? नेम आपने क्या लिख दिया? फॉर एग्जाम्पल ईमेल आपने नाम लिख दिया. लेंथ इसका आपने क्या दे दिया? व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंथ यू आर गिविंग? 10 यू आर गिविंग. अब लेंथ हम लोग 10 क्यों दे रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा आप यहां पे फिर से. जैसे कि यहां पे आप देखिएगा आराम से, देखिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे लेंथ 10 दिया. सो वाई वी आर गिविंग लेंथ 10? व्हाट इज इट्स पर्पज? ठीक है, तो क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से हम लोग लेंथ 10 देने की
कोशिश कर रहे हैं या करने का बात कर रहे हैं। तो पहली बात हम एक काम कर लेते हैं, लेट्स ओपन द डेटाबेस माई सीक्वल हम लोग ओपन कर लिए और माई सीक्वल हमने ओपन करके वी आर राइटिंग इट, शो databases and let me check what database name we have over here. MyJTCDB. MyJTCDB. Okay. Use MyJTCDB where. Okay. Show tables हमने लिखा. I am trying to delete it, so I'll drop it. Drop data base, drop database MyJTCDB. We have dropped it. Okay, we'll again create a database MyJTCDB. हमने ये create कर दिया. We have done it. अब हम लोग यहाँ से एक काम कर ले रहे हैं. ध्यान देखिए, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं है. यू कैन कंसीडर इट एज एन योर फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पहले लिया हुआ था. दैट इज द सेम थिंग वी आर टेकिंग ओवर हियर. ठीक है, एंड यहाँ से अब हम लोग ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम. द most important thing, first one which we are doing here is I'm running this example. इसके example के अंदर we haven't done anything much. अब हमने, आप पहले इसको आप देखिए ध्यान से क्या चला है यहाँ पे. चला ये है कि create table customer 5 CID CNAME email, phone number and all other sort of things you are writing. Primary key is your CID. बट एक बात ध्यान से देखिए कि अगर हम varchar की बात करें तो 255 characters it is taking. The length of that is it is taking what it is 255, which is a huge one, right? But what if we wanted to control it? Because अगर आप देखोगे इससे पहले हम लोगों ने कोई कंट्रोल नहीं किया था कि फील्ड का क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स वी वर नॉट कंट्रोलिंग इट. डिड यू गॉट माय पॉइंट? बट नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट वी वांटेड टू डू इज वी वांटेड टू कंट्रोल इट ओवर हियर. सो इफ वी जस्ट राइट हियर शो tables, no database yet selected, so use MyJTCDB. I'll write it here, and immediately after writing it here, show tables I'm writing, and then start from my customers 5 I'm writing. I'm writing it here. Here we have written something. ठीक है, ये हमने एक यहाँ पे लिखा है, राइट? अभी उसको छोड़ दो. अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि CID आपने क्या लिखा? 1. माई फोन इज व्हाट यू आर टेकिंग इट इज एन नल. ठीक है, अब आप यहां से एक बार और फिर से देखिए, DSC माई कस्टमर्स 5. आप देखिए यहां पे प्राइमरी की हियर वी हैव, देखिए CNAME varchar इट इज देयर व्हेन वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनीथिंग. ईमेल में हमारे पास क्या है? 10 आ गया. बट फॉर माई ईमेल व्हाट वी हैव टेकन हियर इज द unique key constraints we have done it here, right? So
if we wanted to do in this way, so we can monitor it or we can put it over here. Length हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लेंथ कितना स्पेसिफाई कर दिया, लेंथ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया, लेंथ हमने कर दिया 10. So now you are operating it, you are managing it. Second one is nullable you are writing. What you are writing? Nullable true. Nullable true का मतलब क्या होगा? Nullable true का मतलब कि means field value could be null. Field का जो value होगा वो क्या होगा? null हो सकता है. करेक्ट है? बाकी आप यूनिक की का मतलब समझ रहे होंगे. यूनिक, इफ आई एम राइटिंग हियर, व्हाट डज इट मीन? यस और नो? लाइक दैट हियर इन दिस एनोटेशन इटसेल्फ, इसी के अंदर में विल बी गेटिंग लॉट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, अदर वैल्यूज, ठीक है, जिसके कि थ्रू हम लोग इसको वैल्यू दे सकते हैं. समझ रहे हो आप बात? तो ये आपसे एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड की वैल्यू को चाहते हो कि ये चेंज ही ना हो, वी डोंट वांट टू चेंज इट, ठीक है ना? सो हियर व्हाट वी आर मेकिंग अपडेटेबल, व्हाट वी आर मेकिंग इट हियर फॉल्स वी आर मेकिंग. समझे? सो लाइक दैट इसमें जब हम कॉलम के अंदर इसको एक, ये जैसे ये एनोटेशन है, तो इसके जो अलग अलग पैरामीटर्स जा रहे हैं, ध्यान रखना, ये अलग अलग जो पैरामीटर्स जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं, इसका हम, इस एनोटेशन का हम एक तरह से ये वैल्यूज देते हैं. वी आर गिविंग अ वैल्यू. सो इट्स अ काइंड ऑफ, we can call it as an parameters for these annotations, right? जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर आप उसको कॉल करने, तो इसी तरह से किसी किसी एनोटेशन का, जैसे आपने ये देखा टेबल एट द रेट दिया, तो टेबल वाला जब आपने दिया है तो ये क्या है आपके पास? what we have, it is a single valued annotation, single valued annotation. समझे? अब जहां पे कहीं कहीं हम लोग एक भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम लोग मार्कर एनोटेशन भी कहते हैं. वी विल बी कॉलिंग दिस वन एज एन मार्कर एनोटेशन ऑल्सो. करेक्ट? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है. अब आप इसमें चेंजेस कर करके, जहां ट्रू है वहां ट्रू करके, बाकी जहां फॉल्स है उसको फॉल्स कर करके, और आप इसको अपने एंड पे क्या करेंगे, बार बार देखेंगे एंड करेंगे, एंड आप इसको आगे बढ़ेंगे कि कैसे क्या करना है. इज इट ओके? अब यहां से आप देखो सेट करने की कोशिश की जा रही है. व्हाट वे, सो जो मैं आपको मेनली बता रहा था, देखिए वी आर वेन एवर यू आर चेंजिंग, जैसे तो आप देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इन द कॉलम 1, यहां पे कॉलम में आपने ये सब ऐड किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि इट इज पुटिंग द अल्टरेशन ऑफ द टेबल, एंड देन हियर वी आर इंसर्टिंग दिस वैल्यूज. डिड यू गॉट इट? इवन उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को देना जरूरी है या नहीं है, जो नलेबल में आ गया, राइट? तो ये आप देख सकते हो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेरीज इट इज इशूइंग. ठीक है? इफ यू वांटेड टू सी सर्टेन वैल्यूज, तो आप यहां पे एक वैल्यू जो है इसका आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई कस्टमर्स 5 आई एम राइटिंग, यहां पे एक वैल्यू है, समथिंग इट इज देयर हियर, राइट? विद द सेकेंड एंटिटी वी आर अगेन चेंजिंग इट, राइट? तो आप इसको क्या करिएगा, ट्राई आप अपने एंड पे इसको करिएगा एंड इसको एक्सपीरियंस करिए कि क्या और क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकते हैं. सो यू जस्ट सी. नाउ लेट्स कम बैक टू अनदर रिक्वायरमेंट. हम लोग एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट की फिर बात करते हैं इसमें. इज इट ओके? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमने लेट्स से कि क्लास लिखा. अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए. इट इज अ
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों से, इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से भी ये अच्छा क्वेश्चन है कि से फॉर एग्जांपल हमने एक एड्रेस बनाया और हमने एक बनाया कॉलम बनाया, कस्टमर बनाया, या पास्ट में भी हमने बहुत सारे ऐसे क्लासेस बनाए हुए हैं. लेट्स टेक डाउन द अनदर एग्जांपल्स. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने यहां पे एक कोर्स लिया था. सो कोर्स इज अ व्हाट एग्जैक्टली कोर्स इज? इट इज बेसिकली अ एंटिटी. कैन आई से दिस? Can I say this that it is an entity? When we are saying student, so this is also an entity? Yes or no? तो ये एंटिटी अगर हम लोग इसको बोल रहे हैं तो क्या ऐसा है कि ये एक एंटिटी है और क्या ऐसा नहीं है कि ये एक एंटिटी नहीं है? किस चीज के लिए टेबल बन रहा है और किस चीज के लिए टेबल नहीं बनेगा? मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हो? तो आप ध्यान दीजिएगा. Even in the case of student, or in the case of address, at all the places, we are marking it as an entity and we are marking it as a table. Getting it? अब थोड़ा सा आप आगे आइए, इस एग्जाम्पल में आइए. ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट से. सो वी हैव एन कस्टमर. व्हाट वी हैव? वी आर हैविंग वन समथिंग कॉल्ड एज द कस्टमर. सो कस्टमर है हमारे पास अगर, तो एट द रेट एंटिटी वी आर मार्किंग इट, एट द रेट टेबल ओके मार्किंग, दैट्स फाइन. अब एट द सेम टाइम वी आर हैविंग वन मोर एड्रेस एंड वी आर मार्किंग इट एज एन embeddable. We are marking it as an embeddable, but okay, so understand it here. This address we are not calling it as an entity. ये एड्रेस जो है, this is not an entity. क्यों ऐसा है? ध्यान से समझिएगा आप इस बात को. Till the time in a table or any particular class or whatever the entity class you are writing, if it is not getting identified, or its data, if it is not getting identified on some unique parameter, then we will not be calling it as an entity. If it is not, if its fields, if its data is not getting identified uniquely, then we will not be calling it as an entity. ध्यान रखना, मेरे बात समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, अब आप समझिए यहां पे. When we are writing this, when we are writing the customer, so inside the customer we have one field which is marked as an @ID, which means that its data is getting identified on the basis of CID. ये जो है CID के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहा है. अब इसी के बाद it is getting identified on the basis of what? CID. Whereas address का कोई अपना existence नहीं है यहां पे. AID we don't have. If you remember in the previous examples we have given the AID and something like that. But here we are not giving it. यहां पे हमने नहीं दिया. Here we have not given the AID and all. So it's not uniquely getting identified, right? So what we are trying to do, ध्यान रखना. And one more thing, remember, here we don't want to create any separate table for address also. भाई जब उसको हमको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करना है, so there's no point of making that as an address. ठीक है? So what we want कि ये जो हमारा कस्टमर का टेबल बने, उसी कस्टमर के टेबल के अंदर में with certain fields it is getting identified as an address. ये एक हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक, आप इस पॉइंट को आप समझिएगा थोड़ा सा, होप सो कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, वी हैव एन टेबल. सो व्हाट टेबल वी हैव? हमारे पास क्या टेबल है? हमने लेट्स से कस्टमर लिया.
We have taken it as an customer. Our different fields we are writing over here. अलग अलग हमने fields लिए. So what I want is, okay, CID is fine. अलग अलग fields हमने लिया, and address का कुछ fields ये सब जो है हम इसी टेबल के अंदर लेना चाहते हैं. We don't want to create a separate table for the address. मेरा पॉइंट क्लियर हुआ आपको, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं? ठीक है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को. यहां से जिसको हमने यहां पे क्या मार्क किया है, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव मार्क्ड इट विथ एम्बेडेड. एम्बेडेड हमने मार्क किया इसको, एम्बेडेड हमने मार्क किया. समझ में आया एम्बेडेड मार्क करने का मतलब? किसके साथ एम्बेड कर रहे हैं? ठीक है. तो हमने इसके एड्रेस के साथ अब हमने दिया, इसको एम्बेड किया. एट्रीब्यूट ओवरराइड्स, क्या क्या हम ओवरराइड कर रहे हैं? नेम वी आर राइटिंग एज इन स्ट्रीट, तो फिर से ठीक है. कॉलम में कॉलम नेम इसको हम लोग क्या दे रहे हैं? माई स्ट्रीट दे दिए. फिर हमारे सिटी है, कॉलम नेम हमने इसको माई सिटी दे दिया. फिर स्टेट है, इसको हमने स्टेट दे. मींस वी हैव ओवररिडन द एग्जिस्टिंग फील्ड्स नेम इन द टेबल ऑफ कस्टमर और माई कस्टमर्स जो भी हमने क्रिएट किया है. देयर वी हैव ओवररिडन इट. मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है. सो बाय यूजिंग दिस वी आर डूइंग इट. अब आप ध्यान रखो, तो ये एम्बेडेड का मेन मतलब समझ में आया आपको? दिस एनोटेशन, एवरीवन से यस इन द चैट बॉक्स. एंड एट्रीब्यूट ओवरराइड, स्ट्रीट जो है उसको हमने ओवर कर दिया माई स्ट्रीट से. सिटी को हमने किससे ओवरराइड किया? माई सिटी से. स्टेट को हमने कर दिया किससे? माई स्टेट से. ठीक है. सो नाउ व्हेन वी आर रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, it is going to, what it is going to do? It is going to now generate, what it is going to generate? अब ध्यान दो, एड्रेस को हमने क्या मार्क करना पड़ेगा? एम्बेडेबल हमको मार्क करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग, एम्बेडेबल. ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ क्या? Did you got it? For example, let's say my customers, we are writing it. So एक बार हम इसको अगर चाहें तो इसको drop my database, create my database, use my JTC DB हमने कर लिया. Okay. Now what will I do here now? Inside the column. Okay. Here we are going and making it. आप ध्यान से देखिएगा. I'm just running it. आप देखिए यहां पे create customers, देखिए integer, my city, state, street, all these things it is creating it. Am I right? There is no second table which has been created. हमने कोई second table अभी नहीं बनाया यहां पे. And if in case we wanted to see show tables inside this, now select star from my customers. आप देखिए हम लोगों ने क्या क्या ले रखा था. हमने आई थिंक माई सिटी हो गया, माई स्टेट हो गया, माई स्ट्रीट हो गया. ऑल दिस थिंग्स वी हैव टेकन इट. सो इज दैट क्लियर गाइज? एम्बेडेड एंड एम्बेडेबल का मतलब, एम्बेडेड मतलब आप बहुत सारा जगह, ये बहुत एक टेक्निकली बहुत कॉमन टर्म है. जिस टेबल के अंदर, मतलब अगर हम कस्टमर टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी है एड्रेस में हम एम्बेड करना चाहते हैं एड्रेस के फील्ड्स को, सो वी विल राइट हियर एम्बेडेड. ठीक है. जिसको हम एम्बेडेड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन एम्बेडेबल. तो हम लोग एड्रेस को क्या करेंगे? एम्बेडेबल मार्क करेंगे. ठीक है. सिंपल. एम्बेडेड एंड एम्बेडेबल. अच्छा क्वेश्चन है. For the interview purpose, it is a very good questions कि embedded और embeddable में क्या basically difference है. ठीक है. It is very clear to all of you. Hope so कि आपको ये सब कुछ clear हो गया होगा.
मेरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ ये? वेरी गुड। अब आप ये एक एनोटेशन देख सकते हैं जो मैं आपको बताया था, बेसिक वाला एनोटेशन था। ये देखिए, इट इज नथिंग, जस्ट मैं इसको बिल्ड करूंगा, हो जाएगा। ये क्या था आपके पास? बेसिक एनोटेशन व्हेन वी आर राइटिंग इट, करेक्ट ना? बेसिक एनोटेशन, ऑप्शनल ट्रू। मतलब ऑप्शनल ट्रू का मतलब हम वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू नहीं दे सकते हैं, बोथ इट कुड बी, ठीक है? ऑप्शनल फॉल्स, fetch, lazy and all other sort of, so these all are the basic things you can give, but yes you cannot change the or you cannot provide that. बाकी और इसमें कुछ नहीं है, सेम चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एंड द सेम थिंग आई हैव शोन इट हियर। सो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, राइट? ओके। सो एम्बेडेड, एम्बेडेबल एंड ये सब कुछ मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और अब जो है हम लोग हाइबरनेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें HQL, QVC, QBE, ठीक है? सो अब अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपने हाइबरनेट के क्वेरीज को लिखते हैं। और बस थोड़ा सा टाइम स्लॉट का एक इशू आ रहा है आपके लिए। सो सी यू अगेन टुमारो।